Hi everyone, welcome back to my channel and welcome back to Quirky का weekly vlog. आज है 28th of Feb and I am going to करण औजला का concert जो दिल्ली में हो रहा है. ईशान and I are going. जानवी तिवारी, Brown Daughter is also gonna join us. So I'm very excited. I think ये मेरे 2026 vision board में तो मैंने नहीं डाला है, but it is one of my दिल की wishes कि ईशान और मैं और events या और अच्छे जो concert वगैरह होते हैं वो enjoy करें. I feel like हमने अपने 20s में ऐसा कुछ भी नहीं किया because we were just running towards a career, towards earning money, towards making it big. And now that we have a little bit of stability, so we really want to enjoy our lives. जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में है कॉन्सर्ट एंड वहाँ पे पार्किंग बिल्कुल प्रोवाइड नहीं होती. हम जाकिर खान वाले शो के लिए भी वहीं गए थे एंड इट वाज हेल लाइक पार्किंग वगैरह करना. सो आई डोंट नो इस बार ईशान कैसे मैनेज करेगा विद टेकिंग हिज कार. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव अ रियली कूल आउटफिट व्हिच आई एम गोना शो यू इन अ व्हाइल. बट विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस व्लॉग. That was a full power arm workout, wrist workout specifically. Oh my god, Dyson really needs some lighter products, but I love the effect that it gives. मेरे बाल damage नहीं होते हैं and I'm really grateful that मेरे को ये वाला new PR में मिल गया था. PR में? No, I did a full blown collab with them. मेरी memory अभी पूरी जा रही है. But this is how my dried hair looks like. A lot of people ask me what procedure I've got done. I've made a full vlog on it. You guys can watch it. मैं उस वीडियो को लिंक कर दूंगी ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. It's nanoplastia that I got done. But मुझे I think साल या 6-9 मंथ तो हो गए होंगे because उसके बाद भी जो मेरी न्यू ग्रोथ आई है that's not too wavy because मेरा generally थोड़ा wavy frizzy texture है, but looks really amazing जब मैं डायसन से blow dry करती हूँ. So नीचे ऐसे straight effect आता है. So it's actually really difficult to get curls stay in my hair and that's why I was really happy with जब मेरा hair style Chia के engagement में हुआ था. They stayed for a very long time, but I'm not gonna lie, I love this sleek look on me. So yeah, this is what it looks like and मैं आज अपने बाल ऐसे कैरी करने वाली हूँ. I'm not gonna do any shebang या बहुत ज़्यादा makeup. I really have a kick-ass outfit जो पीछे आपको दिख रहा होगा and उसके साथ I want my makeup and jewelry and everything to be very simple. So this is what I'm planning to wear. ये undergarments भी दिखा देती हूँ because a lot of people ask me मैं क्या पहनती हूँ. न्यूड कलर की strapless bra है. Then I have this वेरी ब्यूटिफुल बट लिफ्टर सॉर्ट ऑफ, नहीं बट लिफ्टर है नहीं बट थोड़ा सा ऐसा स्क्रंची इफेक्ट है. इट्स जेन्युइनली अ नॉर्मल शॉर्ट जो थोड़ा सा ऐसे टमी टक टाइप का है. ये मैंने पहले लिया था तो ये एक्चुअली मेरे नॉर्मल साइज का है. इसमें कुछ टकिंग इफेक्ट मिलता नहीं है बट दीज आर द ओनली शॉर्ट्स दैट आई हैव राइट नाउ जो कि थोड़ा यहाँ पे जो चेफिंग हो जाती है ना उसको बचाते हैं बिकॉज आई एम वेयरिंग अ ड्रेस. दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल स्लिप ड्रेस जिसमें ऐसे एक्सेंट्स आपको दिखेंगे लेस वाले. इट्स लाइक अ नाइटी बट वेरी ब्यूटिफुल सैटिन फिनिश एंड ये थोड़ी एसिमेट्रिकल है. साइड में स्लिट है and इसके ऊपर I'm gonna wear this very पतलू सी jacket which is in tiger print. A lot of people wear leopard prints and zebra prints and cow prints but it is very rare that I see some beautiful tiger print जो थोड़ा classy लगता है, not gaudy. and ये वाले nails पिछले vlog में कुछ लोग बोल रहे थे आपने ऐसे क्यों nails कराए, ये थोड़े से old school लग रहे हैं but I really wanted my nails to match this outfit specifically. so yeah, मैं सब आगे का plan करके चलती हूँ and इस outfit के साथ बहुत अच्छा ये जा रहा है. and with that I'm gonna wear these heels that I got from Westside in the last vlog. बहुत ही सुंदर strappy heels है, छोटी सी इसकी I think 2.5 इंच की heel होगी and because the concert is going to be crowded and बहुत चलना वगैरह होगा तो I'm also carrying one pair of very comfy heels जो कि है मेरे trusted Crocs के जो wedges है. These ugly wedges are so comfortable. I cannot go anywhere without them. So yeah, for photos, for outfits, जब हम थोड़ा lunch वगैरह करेंगे I'll be wearing these but these are not exactly very comfortable and concert and walking and crowd friendly. So I would much rather prefer a Croc and that is what I'm gonna wear concert के time पे. But don't tell anyone, okay? It is a secret between just you and just me. Okay, I'll see you guys when I'm having something to eat because मेरे को थोड़ा सा नहा के मैं थोड़ा थका हुआ फील कर रही हूँ. I really need to eat something. Greek yogurt, coconut milk, apple and a few drops of my sugar drops जो मैं लेती हूँ Dibexi की. Yum. Alright y'all, the outfit is looking fab. ये as it is भी बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे slit dress.
एंड इसके यहाँ पे भी छोटा सा स्लिट है. यू कैन ऑल्सो सी द बैक व्यू मेरे मिरर में. बट आई थिंक आई एम गोना रन अ लिटिल लेट. तैयार होने में टाइम लग गया. आई एम जस्ट गोना wear this jacket and I think I'm good to go. These are my trusty Vivienne Westwood earrings. Simple hair, simple makeup, and this beautiful dino bag. Yeah, very cute. And also, oh my god, the chappals. I'm wearing these sandals. I hope you guys can see. Chalo, let's go. This is what we look like today. Very cute. I really like this slit. So beautiful. Okay, now I really have to go. Chalo! आज मीनाक्षी दीदी का बर्थडे है. वी हैव ऑर्डर्ड दिस टू सरप्राइज हर. अभी वो आई है, उन्होंने बेल नीचे बजाई थी, हमने दरवाज़ा खोला तो वो लिफ्ट से आ रही है. लेट्स सरप्राइज हर. हैप्पी बर्थडे. बहुत सुंदर लग रहा है सूट. हैप्पी बर्थडे. थैंक यू. कभी खाएगा मेरे साथ खा लियो. Every year we surprise her with a cake. This time we thought of doing something different. So हमने roses और chocolate ली. But I am hungry right now. अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं एंड मैं यूजुअली जल्दी खा लेती हूँ. बट आज मैं थोड़ा लेट उठी बिकॉज मैं लेट सोई थी. रात को ईशान आया हुआ था एंड वी वर डिस्कसिंग सम वर्क एंड ऑल. सो मुझे आज कुछ हेल्दी तो मैं रोज़ ही खाती हूँ बट कुछ फुलफिलिंग हेल्दी खाने का मन कर रहा है. लाइक मोस्टली मेरा जो ब्रेकफास्ट होता है वो बहुत बोरिंग होता है. इट्स यूजुअली बॉइल्ड एग्स, एग वाइट्स एंड बीच में थोड़ा आई थिंक 2 होल एग्स ले लेती हूँ मैं या फिर स्क्रैम्बल्ड एग्स ले लेती हूँ. बट आज आई वांट टू इंक्लूड सम फैट्स इन इट, सम हेल्दी फैट्स एंड एवरीथिंग. सो व्हाट आई वांट टू मेक इज़ सार्डो ब्रेड, गुआकामोली, फ्राइड एग जो ऊपर हाफ फ्राई सनी साइड अप होता है, 2 वो खाऊंगी मैं. एंड विद दैट आई वांट टू हैव वाटरमेलन फेटा चीज सैलेड. आई हैड दैट इन गोवा एंड इट वाज सो रिफ्रेशिंग एंड आई वांट टू रिक्रिएट दैट इन माय होम. सो लेट्स गो. ये एवोकाडो बहुत सख्त आ गया है एंड इसको हमने बीच में थोड़े से होल्स क्रिएट किए हैं विद द हेल्प ऑफ अ फोर्क एंड इसको माइक्रोवेव करने रखा है फॉर 2 minutes. दैट इज़ a hack that I saw on YouTube. Let's see if it works or not. And I'm using this olive and rosemary flavored sourdough. मैंने चेक किया था कि पर 100 grams में किस में कैलोरीज कम है. बाकी सब में काफ़ी 300, 270 थी. ये 241 पर 100 ग्राम में है एंड पर सर्विंग 144. तो मैं 1 या 2 लेने वाली हूँ विद प्रोटीन इसमें 6 ग्राम है विच इज़ लेस बट इट्स ओके. आज थोड़ा सा मैं इंडल्ज कर रही हूँ. ऑल्सो आई ऑर्डर्ड सम लट्टूस. दूसरा हैक है कि इसको गर्म पानी में 3 मिनट के लिए उबालना है एंड देन ठंडे पानी में डालना है. तो वो भी हम दूसरे एवोकाडो के साथ कर रहे हैं. मोमेंट ऑफ ट्रूथ यू गाइस. बीज भी कट गई. बीज भी कट गया अंदर का. कैसा लग रहा है? गुआकामोली लायक है? हाँ मैंने काम तो किया वैसे. चलो आई थिंक गाइस ये सक्सेसफुल हो गया है.
like these days all I'm doing is saying something and doing something else, but you gotta roll with life. मेरे को बहुत भूख लग रही थी एंड जैसे ये बनते हुए मैंने देखा, एक तो मैंने बोला था मैं 2 ब्रेड खाऊंगी, 2 गुआकामोली, 2 अंडे, ये वो, एंड मेरे को देखते ही ऐसा लगने लगा कि मेरी भूख जा रही है. आई डोंट नो व्हाई. सो आई ओनली एम हैविंग 1 सार्डो विद गुआकामोली एंड 2 एग वाइट्स, 1 येलो. सो एक 1 होल एग और एक वाइट और ऐड कर दिया एंड साथ में ढेर सारे, यू गाइस कैन सी यहाँ पे चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, सब कुछ है इसमें. सो दिस इज गोना बी माई नाश्ता एंड सैम्पल 2 वाली कॉफ़ी आई एम हैविंग. एंड थोड़ी देर बाद आई गेस अराउंड लाइक 12 और 1 जब थोड़ा सा खाना नीचे चला जाएगा, आई थिंक ये पूरा जो मैंने वाटरमेलन मंगाया, मैंने पूरी फैमिली के लिए ये फेटा वाला सैलेड बनाना है. सो विल डू अ बिग बोल काइंड ऑफ थिंग एंड सब मिलके शेयर करेंगे. एंड देर इज दिस मूवी ऑन यूट्यूब, इट्स अ शॉर्ट फिल्म दैट आई हैव टू वॉच. मिशन मूव दिखाई, उसके रील्स मैंने देखे थे, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी. सो वाइल वॉचिंग दैट वी विल हैव दैट सैलड. आई डोंट नो, एम आई क्रेजी? आई रियली नीड टू टॉक टू यू गाइज अबाउट समथिंग विच इज़, do you guys have these visions in mind? Like when I travel, when I am thinking of a recipe, मेरे दिमाग में पूरे scene का एक vision होता है. Is it a control freak in me or is it something that happens to other people as well? I have no idea. But अगर मैं कोई एक चीज़ सोच लूँ, मुझे उसके आसपास की 6-7 चीज़ें और सोचनी होती है. Like I just told you guys, फेटा सैलेड होगा, बिग बोल होगा, मूवी देखेंगे, सब परिवार मिल बैठ के खाएंगे. मैं ऐसे मूवी डायरेक्टर की तरह सीन्स क्यों डिज़ाइन कर रही हूँ, आई हैव नो आइडिया. बट ओके, आई एम गोना शट अप नाउ एंड आई एम गोना हैव माई scrumptious breakfast. बिफोर आई ईट माई सैलेड, मैं आज अपना एक मैंने मतलब इस साल की शुरुआत से उठाया है कि जो वैनिटी वाला ड्रॉर है, एक ड्रॉर मैं खाली कर रही हूँ बिकॉज काफ़ी एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो पुरानी हैं जो मैं यूज़ नहीं करती. सो जो एक्सपायर्ड है आई एम थ्रोइंग देम एंड जो मैं यूज़ नहीं करती आई एम गिविंग इट ऑल अवे टू पीपल. सो दिस इज़ वॉट आई हैव नैरोड इट डाउन टू. ये है मेरे न्यूड लिपस्टिक्स जिसको मैं थोड़ा सा जो बुलेट वाली है वो यहाँ पे रखूँगी. ये है मेरे ऑल पिंक्स एंड मॉव्स, दीज आर माई ग्लॉसेस एंड दीज आर माई डार्कर लिप शेड्स, लाइक जो एकदम ऐसे डार्क मरूनिश वाइब के होते हैं. लेट मी जस्ट फोकस इट ऑन दिस, ऐसे वाले. एंड देन दीज आर द थिंग्स जो एक्सपायर हो गई थी एंड आई एम थ्रोइंग देम ऑल अवे. आई एम रियली सैड बिकॉज सम ऑफ दीज वर सुपर डुपर नाइस शेड्स बट दे हैव एक्सपायर्ड. सो टाइम टू से गुड बाय. ओह, ये यहाँ क्या कर रहा है? दिस आई एम गिविंग अवे. यहाँ ये गिव अवे लॉट में मैंने ये रखा हुआ है. I cannot wipe out years of overconsumption, but this is a step towards it. So, यहाँ पे ये मेरा मेकअप बेस का, ये मेरे कॉन्टोर, कॉम्पैक्ट, ब्लशेस, एवरीथिंग इज हियर विद आई प्रोडक्ट्स एंड मस्कारा. थोड़े से यहाँ पे आई शैडो एंड फेस पैलेट्स हैं. एंड देन ये रही मेरी लिपस्टिक कलेक्शन जो मैंने बहुत ही, आई थिंक मैंने कुछ 40-50% तो निकाल दिया बिकॉज यू कैन सी द खाली स्पेस हियर. सो ये वाले 3 हमने बहुत अच्छे से कर लिए हैं साफ. And I'm really happy. Keep in mind, this is still my job. I still have to try out new products, but I'm really happy with वो जो clutter चला गया है. And now it's time to make the watermelon feta cheese salad जो मैं इतनी देर से बक करे जा रही हूँ. It's finally time. Guys, watermelon feta cheese में ना lemon and अलग-अलग taste बहुत important होते हैं मीठे के साथ. Salty, tangy. So ये मैंने Blinkit से imported lemon मंगवाया था जिसकी हमने ये खाल निकाल ली है. And इसको छोटे-छोटे pieces में काट रहे हैं हम. ओके गाइस, हमारा पूरा वाटरमेलन हो गया कट के रेडी. ये लेमन पील जो हमने छोटे छोटे क्यूब्स में काटी थी पहले वो डाल रहे हैं. नाउ दिस इज सूखा हुआ मिंट जो हम डाल रहे हैं इसमें फॉर दैट समरी मिंटी इफेक्ट. सम पेपर, थोड़ा सा सेंधा नमक. ये जो हमारा मेलन था दैट इज व्हाट वी आर स्क्वीजिंग. अब इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स. अब ये फेटा चीज़ जो मंगाया था ब्लिंकिट से उसका ऐसे भुर्जी टाइप की दोनों में डाल देनी है अच्छे से.
एंड जो मिंट लीव्स थे वो भी थोड़े चॉप करके इसमें डाल दिए. देन गिव इट अ गुड मिक्स अगेन एंड लास्ट में जस्ट गार्निश इट अगेन विद लेमन वाला जो पील था. एंड दिस इज रेडी. आई एम सो हैप्पी कि मैंने घर पे ये बनवा लिया है. लुक सो यम. I am here chilling like a villain with Mr. Villain, Mr. Simba. I have been, oh my god, happy Holi by the way you guys. I forgot. आज होली है, मतलब यहाँ बोलना व्लॉग पे. So what did I do? आज का बहुत ज़्यादा लेजी दिन है. कल मैं पूरा दिन काम कर रही थी. So कल मैं बहुत थक गई थी. रात को भी लेट सोई एंड नींद भी अच्छे से नहीं आई. एंड आज सुबह उठ के दिवाकर हैज़ गॉन टू हिज गाँव. सो आज सुबह उठ के मैंने मम्मी के साथ वो सोया चाप रोल बनाया जो मैंने एक पहले अपनी प्रोटीन रेसिपी वाले में भी आप लोगों को बताया था. देन आई एम रिकॉर्डिंग अ शॉर्ट विच इज़ वॉट आई एट ऑन होली. एंड ईशान आया था. ईशान हर साल लाता है भल्ले और गुजिया जो आंटी उसकी मम्मी बनाती है. सो वी इन्जॉयड दैट. देन मैंने थोड़ा मम्मी को रेस्ट देने के लिए थाई करी मंगाई तो मेरे पेरेंट्स ने थाई करी खाई. मैं अभी थोड़ी देर में गुजिया खाऊंगी. सो आई विल बी स्किपिंग लंच बिकॉज गुजिया हैज़ टू मेनी कैलोरीज. एंड देन शाम को अराउंड लाइक 5 मैं अपना डिनर कर लूँगी. सो दैट्स द प्लान फॉर द डे. बट काफ़ी अच्छी फूलों की एंड जो लो की होली होती है वो खेली. मेरे यहाँ पे स्टेन भी लगा हुआ है होली के रंगों का बिकॉज आई डोंट गो आउट. मेरे बहुत ज़्यादा हॉरेबल एक्सपीरियंसेस रहे हैं होली पे स्पेशली दिल्ली में. सो मैं अब होली नहीं खेलती हूँ एंड मैं घर में ही अपने मम्मी पापा सबको रंग लगा देती हूँ. सिम्बा को भी थोड़ा सा लगाया. ही इज़ फीलिंग अ लिटिल डाउन टुडे. सो इसलिए आज मेरे पास ही ऐसे मेरे नुक ऑफ द बाजू में रेस्ट कर रहा है, सो रहा है. सो आई एम जस्ट ऑन मॉमी ड्यूटी टुडे एंड या दैट्स द अपडेट. So this vlog for me was pretty experimental. It is night time and I really wanted to know if you guys are enjoying these kind of silly non-goal or aim focused vlogs. Like I usually vlog जब कुछ special होने वाला होता है. इस साल हमारी होली भी ऐसे ही रही. I think 4-5 साल से ऐसे ही जा रही है बिकॉज जब बच्चे होते थे तब ज़्यादा अच्छा लगता था. हम लोग एक रूटीन होता था कि पड़ोसियों के साथ खेलते थे या एक साल मासी मौसा हमारे घर आते थे, अगले साल हम उनके घर जाते थे. एंड वी रिमेंबर कि हम इतना बच बच के जाते थे बिकॉज मेरे मासी मौसा का एक आगे बड़ा सा गार्डन होता था. एंड जैसे हम एंटर करते थे वो भर के रखते थे पूरी ऐसे बाल्टियाँ एंड जो वाटर बलून्स होते थे और ऐसे आक्रमण होता था हमारी तरफ. तो वो बचपन की जो होली होती है उससे आई डोंट थिंक अब बड़े होके यू कैन कंपेयर इट टू एनी थिंग. आई फील लाइक मेरी जनरेशन के जो लोग हैं जिनकी शादियां हो गई है उनके जब बच्चे होंगे तो मे बी उसके थ्रू एक रिलीव करने का मौका मिले. बट अभी हमारी एज में जो लोग अनमैरिड हैं या सिंगल हैं या वट एवर, आई डोंट थिंक होली में इतना मज़ा आता है अनलेस यू गोइंग टू अ होली पार्टी और समथिंग. बट आई जस्ट वांट टू से दैट मैं अभी आजकल देख रही थी इंस्टाग्राम पे करण औजला का जो मुंबई एंड पुणे में कॉन्सर्ट हुआ एंड पीपल आर नॉट रियली एंजॉइंग इट. एंड मुंबई वालों का तो आई थिंक धूप में हुआ था. सो द वेदर वॉज रियली रियली बैड. एंड वैसे मैं रील्स ये भी देख रही थी कि जो यहाँ पे था दिल्ली में हुआ था उसमें भी काफ़ी लोग फ्री में मतलब 0 टिकट लोगों ने व्लॉग किया पूरा एक्सपीरियंस अपना कि बिना लाइक 0 रुपीज़ दे के वो ऐसे ही घुस गए. उन्होंने पूरा कॉन्सर्ट एंजॉय किया. वेराज हम लोगों ने 5, 6, 7, 10 हज़ार पे किए थे. बट आई डोंट माइंड दैट. लाइक आई एम नॉट बिटर अबाउट इट. ये पुलिस एंड जो व्यवस्था वगैरह है उनका काम है. सो आई वुड लेट इट स्पीक. बट आई जस्ट फेल्ट लाइक कि जो भी मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे, येस दिल्ली का क्राउड काफ़ी आक्रोश में था एंड बीच में हाथापाई भी हो रही थी VIP सेक्शन में. आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इट. बट मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में बहुत एंजॉय किया करण औजला का कॉन्सर्ट. स्पेशली जब मैंने उनकी जर्नी देखी है तो मेरे को अच्छा लगा देख के कि यार ये बंदा कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ पहुँच गया. सो आई जस्ट फील रियली प्राउड एंड मेरे को अच्छा भी लगा. वाइब्स भी अच्छी आई. ऑल्दो मेरे को सारे गाने नहीं पता थे, मेरे को ईशान के थ्रू पता थे. बट आई रियली एंजॉयड इट एंड टू सी ईशान स्माइल एंड एंजॉय एंड लिव हिज बेस्ट लाइफ. आई फील लाइक यही मेमोरीज हैं जो मैं पूरी लाइफ याद रखूंगी. सो मेरे को बहुत अच्छा लगा. अदर देन दैट जिस क्वेश्चन की वजह से मैंने ये आउटरो शुरू किया था वीडियो का इज दैट आर यू गाइज एंजॉइंग दीज काइंड ऑफ व्लॉग्स जिसमें मैं कुछ बहुत पर्टिकुलर व्लॉग नहीं करती हूँ. आई जस्ट शो यू अबाउट माई डे. कहीं जाना है तो जा रही हूँ, नहीं तो घर पे रह रही हूँ, सिम्बा के साथ लेटी हूँ, कुछ खाने का मन हो रहा है तो बता रही हूँ कि ये खा रही हूँ, थोड़ी बहुत रेसिपी बता ली. सो ऐसे टाइप के आपको पसंद है या नहीं पसंद है बिकॉज डिपेंडिंग ऑन योर आंसर तभी मैं सोचूंगी कि आगे मैं और व्लॉगिंग कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ.
अदर देन दैट मैं थोड़ा चैनल में शिफ्ट करना चाह रही थी कि ट्रैवल व्लॉगिंग की साइड थोड़ा जाया जाए, या फिर कुछ गोल ओरिएंटेड चीज़ें दिखाऊँ आपको, या फिर जस्ट थोड़ा स्ट्रक्चर हो. बट इन केस यू गाइज लाइक दीज व्लॉग्स तो मैं ये ज़्यादा डालूंगी. सो लेट मी नो इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो, एंड आई होप यू गाइज enjoyed watching this vlog regardless. I will see you guys next time. आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो दैट करके में, अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम. बाय.